Hi Kiran, welcome on Europedia Global. Yes, sir. And Kiran, let me congratulate you for your selection in direct PhD program in a very prestigious institute, UNSW, Australia. Congratulations for that. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, Kiran, very less students from India aspire to go for direct PhD. We keep on telling them to go for direct PhD. There are so many advantages of direct PhD, but as of now, awareness is very less in India for this particular course. Majority of the candidates try to go for MS instead of direct PhD. So आपसे मैं सारा जानना चाहूंगा, आपकी पूरी प्रोसेस जानना चाहूंगा. आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरेक्शन. प्लीज टेल मी अबाउट यू फर्स्ट, इन विच यू प्लीज टेल मी विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम. आपने ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से की है, सो दैट इफ योर जूनियर्स वांट टू कांटेक्ट यू, दे आर इन पोजीशन टू लर्न फ्रॉम यू एंड कांटेक्ट यू. एंड देन आपने ग्रेजुएशन के बाद की जर्नी कैसी रही टिल यू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन. Okay. So my name is Kirtan Bhatt. I have done my bachelor's of engineering, specialized in instrumentation and control from LD College of Engineering, situated in Ahmedabad, Gujarat, which is a prominent engineering institute, prominent government engineering institute in Gujarat. Uh, Thereafter, I got placement from college itself. So I joined Aarti Industry Limited. So from past 1 year, I am working in Aarti industry, and I got to know about this direct PhD and PhD option in foreign country. By contacting professor, we can got the opportunity to work with them. So I applied to various universities of Australia and contact. I have mailed hundred of professor there in different universities. So I got 2 3 replies from the professors, and then they asked me about send your documents. They verified my document, then scheduled an interview. They asked me about my research work, which I have done in my bachelor's. So I have sent all that, and finally they have approved me to apply for the scholarship. So once you got the approval from the professor that I will be your supervisor, you can now mention me in a scholarship application form. So I have applied in the scholarship application form, and after 1 or 2 months, I got the offer letter from the UNSW. Good. Now Kirtan, on the basis of what you told me, I'll ask you a couple of things here. You are from very reputed college, LD College of Engineering in Ahmedabad. दैट इज वेरी रेप्यूटेड कॉलेज, और आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो नीडलेस टू से आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होंगी और आपने जॉब भी किया आरती इंडस्ट्रीज में. नॉर्मली स्टूडेंट्स आफ्टर बीटेक दे गो फॉर एमएस. पहले मेरे को ये बताओ कीर्तन, आप डायरेक्ट पीएचडी क्यों एक्सप्लोर करने लगे? व्हाट वाज द रीजन? Okay, sir. First of all, my orientation toward research is uh, I want to do research in a particular field. So I got to know about this direct PhD option first. So first of all, professor told me that you have not done masters yet, so it's difficult for you to got the opportunity to do PhD direct. But they told me that if you have a research component in this bachelor's curriculum, then you will be get an opportunity to join us. सो मास्टर्स के लिए मास्टर्स में जाना और डायरेक्ट पीएचडी में ये डिफरेंस रहता है आपके लिए कि अगर मास्टर्स में जाते हो तो आपको मास्टर्स बाय रिसर्च और प्रोग्राम मिलेगा, जिसमें अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट पीएचडी के कंपैरिजन में लेस है, क्योंकि अगर डायरेक्ट पीएचडी में जाते हो तो यू विल बी वर्किंग अंडर प्रोफेसर डायरेक्टली, while in the masters you will be going through the PhD, going through the documentation that how research will be going on, कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, कैसे रिसर्च वर्क करते हैं. और डायरेक्ट पीएचडी में तुम्हें प्रोफेसर के अंडर डायरेक्ट गाइडेंस मिलेगा, वाइल इन द मास्टर्स बाय रिसर्च पर आपको मेंटर दिया जाएगा जो डायरेक्टली प्रोफेसर के अंडर नहीं होंगे. आप मेंटर से थोड़ा सीखोगे, बाद में प्रोफेसर के अंडर वर्क करने जाओगे. सो ये डिफरेंस रहता है. तो मुझे डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट पीएचडी का पहले ऑप्शन मिला था, तो आई गॉट इट एंड आई अप्लाइड थ्रू इट. अच्छा किरण, डायरेक्ट पीएचडी में तो काफी टाइम लगेगा. मेरे को बताओ जरा, एमएस में कितना टाइम लगता है और डायरेक्ट पीएचडी में कितना लगता है? कि सर, सो हाँ, बैचलर्स के बाद अगर मास्टर्स में जाते हो तो 2 साल, और बाद में पीएचडी में और 3 4 साल लग जाते हैं. तो डायरेक्ट हम्म. पीएचडी में सर ने मतलब रिसर्च वर्क पे डिपेंड करता है. उन्होंने मुझे 4 साल का बोला है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर, 6 महीने मुझे रिसर्च पेपर पब्लिश करने में लगाना है. तो अराउंड 4 to 6 ईयर, 4 और 4.5 ईयर विल बी मतलब टेकन बाय अगर दिस. अच्छा अच्छे पेस पे चलता रहा तो 4.5 साल में तुम्हारा हो जाएगा. डेफिनेटली सर. 4.5 years में आप कर पाओगे डायरेक्ट पीएचडी. अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ स्कॉलरशिप के ऊपर यार. किरण ये बताओ, स्कॉलरशिप एमएस में अगर जाते तो कितना मिलता, क्या चांस होता, और डायरेक्ट पीएचडी में मिलने के चांस क्या होते हैं? खर्चा एंड स्कॉलरशिप. सो मास्टर्स में जाते हैं तो सर उन्होंने सिर्फ ट्यूशन फी
कवर करने के लिए बोला था, या फिर यू विल बी गेट 15% स्कॉलरशिप और इधर हम्म, कंप्लीट ट्यूशन फी। बट ये जो डायरेक्ट पीएचडी ऑप्शन है, जिसको ऑस्ट्रेलिया में एचडीआर बोलते हैं, हायर डिग्री बाय रिसर्च, तो इसमें मेरी ट्यूशन फी कवर हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे $37,000 पर ईयर स्टाइफन मिलेगा जब तक मेरी पीएचडी खत्म हो जाती है। सो एक ये बेनिफिट रहेगा कि मुझे एनुअली स्टाइफन मिलेगा, जिससे मैं मेरा लिविंग एक्सपेंस एंड ऑल अदर एक्सपेंस अपार्ट फ्रॉम दिस ट्यूशन फी मैं मैनेज कर पाऊंगा। हम्म। अच्छा देखो, हम लोग ये एनालिसिस भी करते हैं किरण कि बाहर जब आदमी पीएचडी करने जाता है, यूएस में टिपिकली $2,500 मिलता है, जिसमें $1,500 अगर खर्चा आ भी जाए तो $1,000 बच जाता है, मतलब 70-80 हजार रुपये पर मंथ बचा लेता है इंडियन। अब मैं ये एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सा ऐसा बच्चा है इंडिया में जिसको घर को सपोर्ट करना होता है। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि ये जो आपको स्कॉलरशिप मिला है, इसमें अगर आपने एनालिसिस किया हो, कितना पैसा आप मंथली सेव कर पाएंगे? सो सर, मेरा कॉलेज सिडनी में है, सो सिडनी इज बिट एक्सपेंसिव। सो हम बोल सकते हैं कि 1200 से $1,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मेरा रहने का रेंट आएगा, एज पर दी हम्म, सिडनी करंट नॉर्म्स। तो हम्म, $1,500 को मान के चले तो एक महीने का 1,500, सो 12 महीने में मेरे अप्रोक्स 28,000 या फिर $30,000 हो जाएंगे, और मुझे हम्म, स्टाइफन मिल रहा है $37,000। तो भी मेरे हम्म, $7,000 जैसे बचेंगे। और हम्म, अगर मुझे पार्ट टाइम का अपॉर्चुनिटी देते हैं, कि उन्होंने हम्म, मतलब ऑफर लेटर में लिखा है कि अगर तुम्हारा करिकुलम को अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो तो तुम पार्ट टाइम कर सकते हो स्पेसिफिक आवर्स के लिए। अगर मैं पार्ट टाइम करता हूँ तो और मैं बचा सकता हूँ, सो दैट विल बी नॉट एन इशू फॉर मी। पैसे तो मेरे हम्म, वैसे भी 7,000 8,000 डॉलर बचने वाले हैं, और ऊपर से मैं पार्ट टाइम करता हूँ तो विल गेट विन ऑल मोर। एंड व्हाट इज यूएस डॉलर? ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज वन सॉरी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन अराउंड डॉलर। 55 to 56 रुपीज राइट नाउ। So you are talking about the ऑस्ट्रेलियन डॉलर, राइट? यस यस। हाँ, तो मतलब आप ऐसा है कि 5-6 लाख रुपए बचा सकते हैं इंडियन रुपीस के हिसाब से पर एनम। यस सर, डेफिनेटली। गुड। सो किरण, नाउ प्लीज टेल अस अबाउट द सिलेक्शन एंड द यूनिवर्सिटी इन व्हिच यू गॉट सिलेक्टेड, उस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएं। Okay, sir. UNSW, I'm very fortunate that I got in UNSW because ऑस्ट्रेलिया में वो टॉप 5 यूनिवर्सिटी है, और स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियरिंग इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। एंड वर्ल्ड हम्म, वाइड एज पर यूएस रैंकिंग 24, इट्स टॉप 100 यूनिवर्सिटी एंड इट्स 88th इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और हम्म, मोर ओवर उसका कैंपस लाइफ, ऑल द रिसर्च फैसिलिटीज अवेलेबल देयर, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग ओरिएंटेड रिसर्च इज मोर इमेंस देयर। हम्म, हम्म। So, have you explored the opportunities after the PhD there? मतलब PhD जब कंप्लीट होगा तो क्या opportunities मिलेगा? Okay, so after PhD, either I will be working as an assistant professor at the campus itself, or I will be get an opportunity to work in a private company where research-oriented work will be done there, like in a big MNC company or private research labs. तो मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलने में कोई ट्रबल नहीं है, यू विल गेट अ जॉब। Yes, sir, definitely. अच्छा किरण, कीर्तन, सॉरी, आर यू इन कांटेक्ट विद योर प्रोफेसर विद whom you are going to work? Yes, sir, I'm in contact with my professor. He told me that if you can come early as well, so we can start work early. So he regularly mail me and send me the document that we are what will be our future plan. You are coming in the term 2, so this is our agenda and we are working on this. अच्छा चलो, आप इंडियन सिस्टम में भी पढ़ाई किया है आपने, मेरे को ये बताइए, जब आप ये प्रोफेसर से बात कर रहे हैं आपको क्या लग रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर माय प्रोफेसर्स अब्रॉड फॉरेन यूनिवर्सिटीज? सर, एक तो ये रहता है सर कि उनको ग्लोबल एक्सपोजर है कि दुनिया में क्या रिसर्च चल रही है और क्या हम अप्रोच करने वाले हैं। हम्म, तो मेरे जो प्रोफेसर है वो बेसिकली साइबर फिजिकल सिस्टम पे अभी वर्क कर रहे हैं। तो हम्म, उनका जो उन्होंने उन पे रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किया, ऑलमोस्ट उन्होंने ये रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश किया। तो इंडियन लेवल पे क्या रहता है सर कि आईआईटीज में भी अच्छी रिसर्च होती है, नो डाउट। अनम्यूट योरसेल्फ कीर्तन। वहां पे भी मिल सकता है। That's it. या कीर्तन, कैन यू रिपीट इट बिकॉज आई कुड नॉट लिसन लास्ट कपल ऑफ सेंटेंसेस। So इसमें रिसर्च प्रोविजन में क्या आता है कि फॉर रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस हमें फ्रांस, स्पेन या फिर यूके भी जाना रहता है। सो फॉर रिसर्च कॉन्फ्रेंस एंड पब्लिक पेपर पब्लिकेशन, तो ये मुझे प्रोफेसर ने बताया था।
अच्छा, आप बता रहे थे कि यू स्टार्टेड मेलिंग द प्रोफेसर, और 100-200 मेल आपने किए, उसके बाद आपको रिस्पांस मिला। कैन यू टेल अस कि कितना मेल आपने किया और आपने कैसे प्रोफेसर्स को पकड़ा? वाज इट ऑन मेल और लिंक्डइन और हाउ? एंड कितने फाइट के बाद आपको एक दो लीड्स मिली? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे डोमेन के अकॉर्डिंग सर सारी यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की है उन्होंने मैंने इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोफेसर को शॉर्टलिस्ट किया। एक रफ मेल ड्राफ्ट कर दिया, फिर उसको मैंने एक्चुअली चैट जीपीटी में प्रोफेशनली लिखने के लिए चैट जीपीटी को बोल दिया, तो उसने प्रोफेशनली मेल ड्राफ्ट कर दिया। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले रफली लिख दी थी, फिर चैट जीपीटी ने मुझे परफेक्टली प्रोफेशनल मेल लिख के दे दिया। वो मेल मैंने हर एक प्रोफेसर को उनके रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने मेल किया। हर एक मैंने एक दो पैराग्राफ ऐसे रखे थे जिसमें मुझे चेंज करना रहेगा प्रोफेसर टू प्रोफेसर अकॉर्डिंग। तो बाद में मुझे एक तो यूएनएसडब्ल्यू, फिर ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी एंड आरएमआईटी, इन तीन में से मेल आया था, पर ग्रिफिथ में मेरा नहीं हुआ था। यूएनएसडब्ल्यू का अभी लास्ट वीक ही मुझे आया, तो यूएनएसडब्ल्यू में फिर हो गया। सो आपने अभी यू हैव स्टिल अप्लाइड इन मोर यूनिवर्सिटीज, और दिस इज द फाइनल नाउ? नो सर, मैं ये मेरा फाइनल ऑफर, आई एम गोना एक्सेप्ट दिस। अच्छा कीर्तन, मेरे को ये बताओ, बीइंग कंप्यूटर इंजीनियर, कौन कौन सी रिसर्च एरिया ज्यादा अच्छे हैं आजकल, जहाँ पे जाना चाहिए स्टूडेंट्स को? मेनली सर, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, विच इज मोर लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर। तो मैं बताऊँ तो मेन तो साइबर फिजिकल सिस्टम है, और मोर इन द डेटा साइंस फील्ड वेयर वी कैन डू द एनालिटिक्स ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज डेटा इज एवरीवेयर राइट नाउ। So in the data हम्म। science and the cyber physical system, where the computer or electronics engineer can do the further research work. Okay. And what were the credentials, Kirtan, like your CGPA and your exam, if you have qualified any exam like GRE, TOEFL, IELTS, what were the credentials? Okay, so sir, overall CGPA in final year was 8.55, which is decent to apply in the professor. And I have for English proficiency test, I have given IELTS. So my IELTS score is 6.5, and in each section I got above 6, no band less than 6 in each section. And for you, Australian universities, you require only IELTS. GRE is not required. No, sir, GR is not required. If either Hmm. you, for English proficiency, you either write PTE or IELTS. Hmm. How difficult did you find IELTS, and how many months are required to qualify it? Okay, sir. So, first of all, IELTS required more and more practice instead of getting into the concept. So, in 2.5 months, I have not taken any coaches. I follow the Europedia sessions, which I have Hmm. got from the Europedia team. So I follow Hmm. the session, do the speaking session with the Europedia counselor, and after 2.5 then I have given the test, and I got secure 6.5, and which is sufficient enough to apply. And Kirtan, आपने कब ट्राई करना स्टार्ट किया था, and when did you get your first selection? Okay, so sir, I have started from March April in 23. So दो महीने तो मुझे ये मेल करने में और उसमें ही लग गए थे, मेल ड्राफ्ट करना, फिर रिप्लाई है तो मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करना है, फिर इंटरव्यू शेड्यूल होगा। फिर Hmm. 2 महीने के बाद जो यूएनएसडब्ल्यू एंड ग्रिफिथ में मेरा इंटरव्यू हो चुका था, फिर उन्होंने मुझे बोला था कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दो, फिर उसमें अप्लाई किया। फिर मतलब मार्च से लेके मार्च अप्रैल और मई जाने के बाद मेरा जून जुलाई में फिर से उन्होंने बोला कि आपका सेकंड इंटरव्यू होगा। तो सेकंड इंटरव्यू के लिए मैंने अपीयर किया। फिर उसके बाद 1 महीने और बाद मुझे और डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोला कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना के भेजो। फिर मैंने रिसर्च प्रपोजल बना के भेजा। फिर फाइनली अभी जो जून जुलाई अगस्त अगस्त में मैंने एप्लीकेशन के अप्लाई कर दिया। उन्होंने बोला कि 1-2 महीने लगेगा जो रिसर्च आउटकम आने में, क्योंकि वर्ल्ड में से टोटल ऑफ एप्लीकेशन आएंगी, वो एवेल्युएट करेंगे और जिसको ऑफर लेटर देना है उनको देंगे, बाकी को रिजेक्शन मेल भेजेंगे। तो अभी लास्ट वीक मुझे मेल आएगा। सो ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ मिनिमम तो लेते हैं ये लोग। Okay. And can you share with us your experience of two interviews? What were these about? पहले इंटरव्यू में क्या पूछा था, दूसरे में क्या पूछा था? What do they typically ask? स्टार्टिंग में तो इंटरव्यू में मेरा एकेडमिक्स और प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग पूछा था कि बैचलर्स में तुमने क्या प्रोजेक्ट किया है और रिसर्च वर्क क्या किया है।
उन्होंने बोला कि हम्म, तुम डायरेक्ट पीएचडी के लिए आना चाहते हो, आपने मास्टर्स किया नहीं है, तो हम आपको क्यों कंसिडर करें। तो बेसिकली हम्म, मैंने बैचलर्स में मैंने एक पेटेंट पब्लिश किया था, उसके रिगार्डिंग मैंने बताया। फिर जो मेरे हम्म, प्रोफेसर थे उन मेरा रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन कैसे हो रहा है, कैसे मैं एग्जीक्यूशन करूंगा, उसके रिगार्डिंग बताया। और हम्म, मेजोरिटी क्वेश्चन यही थे उनके कि आपका अप्रोच बताओ कि इस पर्टिकुलर फील्ड में आप कैसे रिसर्च रिसर्च आउटकम ला सकते हो, इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हम्म, ओके। क्या नया कर सकते इन सेकंड इंटरव्यू दैट्स वाज टेक्निकल। हो। सेकेंड इंटरव्यू में तो सर बेसिकली मुझे पूछा क्या कि आपके पास सफिशिएंट फंड है, अगर स्कॉलरशिप ना मिले तो भी ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं, और अकोमोडेशन का कोई इशू नहीं होगा ना, आपके साथ कोई और आने वाला है कि नहीं, मतलब मोर एचआर टाइप इंटरव्यू सर, सेकेंड इंटरव्यू। So did you say that you have funds or you said you don't have? हेलो। Okay, so Kirtan, we were discussing about the second interview. So in that you said that you have funds or you said you don't have? ओके सर, सो मैंने मेंशन किया था कि नहीं, मेरे फैमिली के पास सफिशिएंट फंड है। वो एक्चुअली मोर एचआर टाइप इंटरव्यू था, तो वो जानना ही चाहते थे अगर स्कॉलरशिप ना मिले तो भी तुम परस्यू करना Hmm. चाहते हो तो नहीं। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा, अगर किसी का सेकंड इंटरव्यू तक चले जाता है तो उसमें यस ही बोलना है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम वो जानना ही चाहता है कि विदाउट स्कॉलरशिप यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। Okay. So, Kirtan, now, I'll be asking you one question. Like Indian student, मार्च अप्रैल में जब आपने अप्लाई किया था उस टाइम पे इंडिया में लोग इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हैं. So, by any means, did you write GATE exam also and were you trying for Indian universities also? यस सर, मैंने एक्चुअली थर्ड ईयर में एक बार गेट दिया था, उसमें क्वालिफाई हुआ था बट सफिशिएंट स्कोर नहीं आया था। तो मैंने सेकंड टाइम गेट दिया, उसमें भी मेरे 40-50 मार्क्स आए थे, जो भी टॉप 7 आईआईटीज के लिए सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि आई वांट टू गेट इनटू टॉप 7 ओनली। फिर मैंने Hmm. बीआरसी का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एग्जाम दिया, वो मेरा क्लियर हो गया, मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया, पर इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। तो फिर Hmm. मुझे लगा कि अल्टीमेटली मुझे रिसर्च में जाना है, तो योरपीडिया के थ्रू मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला कि हाँ, फॉरेन यूनिवर्सिटी में हम लोग फुल्ली स्कॉलरशिप लेके भी रिसर्च डोमेन में जा सकते हैं। Hmm. तो उसके बाद जो मेरा सेकंड गेट हुआ, उसके बाद मैंने सोच लिया कि अभी गेट नहीं देना है मुझे तीसरी बार, अभी मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ। तो पैरेलली मैंने आइल्स के लिए प्रिपेयर किया एंड प्रोफेसर को मेल किया, और फाइनली आई एम इन द पोजीशन राइट नाउ। आपको क्या लगता है, आई वांट योर वेरी ऑनेस्ट अप्रेजल ऑन दिस, कि अब्रॉड से एजुकेशन और इंडिया में क्या डिफरेंस नजर आता है? एंड ओके, एज आई तो सेड आई वांट ऑनेस्ट आंसर इन दिस. इंडियन एजुकेशन लाइक, मैंने आईआईटीज में पढ़ाई नहीं की, मैं आईआईटीज की बात करूंगा क्योंकि मेरा भी वही अप्रोच था पहले। नॉर्मल कॉलेज की और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं करता। आईआईटीज में यस फैसिलिटी है, उन्होंने कंपनीज के साथ कोलाबोरेशन भी किया हुआ है, बट मुझे जितना पता चला है कि मेरे आईआईटीज में भी 2-3 फ्रेंड्स हैं कि रिसर्च ओरिएंटेड जो थियोरेटिकल वर्क है वो ज्यादा होता है, बाकी जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर और जहाँ पे लाइक वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में क्या है कि प्रोसेस पूरा सेटअप तुम्हें दे देंगे, कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, स्टूडेंट को इतना स्टाइपेंड देगा कि स्टूडेंट को कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, और फुल्ली प्रोफेसर विल बी मेंटर यू फॉर थ्रू आउट द डे। वेल आईआईटीज में और रिसर्च इंडिया में के लिए क्या होता है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर उतना नहीं है, एंड यू विल बी गेट इनफ नॉट सफिशिएंट स्टाइपेंड कि तुम्हें लगेगा नहीं कि पीएचडी करने पे इतना स्टाइपेंड तो मुझे सफिशिएंट होगा, क्योंकि आई थिंक कि 30 के 40 हजार स्टाइपेंड देते हैं यहाँ पे पीएचडी में अगर रिसर्च में जाओ तो तुम। ओके. अच्छा कीर्तन, क्या है आपका लॉन्ग टर्म विजन, क्या है अपने अपने करियर को लेके? सो तो मैं वही सोच रहा हूँ कि साइबर फिजिकल सिस्टम में अभी मुझे प्रोजेक्ट्स के लिए डोमेन मिला है, तो उसमें आगे जाऊँ, या फिर उसी डोमेन में मैं कुछ हेल्थ केयर सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट लाऊं, उसके एक्सपीरियंस के साथ जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उस डोमेन में पर्टिकुलरली। सो जो मैं नेटवर्किंग यूनिवर्सिटी में से गेन करूंगा, उससे उस पर्टिकुलर डोमेन में या तो मैं एमएनसी के कुछ पर्टिकुलर रिसर्च सेक्टर में जाऊँ, या फिर मैं एज अ प्रोफेसर वर्क करना चाहता हूँ। So getting teaching position is good in Australia. You can get teaching position easily or something like that. I have not much information of that, but Hmm. I think that that would be a great opportunity. Hmm. Acha Kirtan, anything you want to suggest the students who are listening to you on this platform? ओके, सो जो भी जिन्होंने बैचलर्स खत्म कर दिया और जो भी अभी जॉब सेक्टर में है अथवा तो विदाउट जॉब है, मैं वही बोलना चाहूंगा कि अगर
आपको अगर मास्टर्स करना हो या फिर किसी रिसर्च पोजीशन में जाना है तो आ, ये सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया में भी कर रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, फॉरेन में भी कर रहे हो तो भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। बट फर्स्ट स्टेप आपको रखना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में सोचा नहीं था कि मुझे किसी प्रोफेसर का मेल आएगा, क्योंकि मैंने अभी तो रिसेंटली बैचलर्स खत्म किया ना, मुझे कोई एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी जीईटी एज अ जीईटी मैंने ज्वाइन किया था कंपनी में। तो जो भी है, अभी तुम एक कंपनी में से दूसरी कंपनी में स्विच करोगे, दूसरी में से तीसरी में करोगे, फिर तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं होगा। उससे अच्छा कि फर्स्ट स्टेप आफ्टर ग्रेजुएशन तुम्हें जो करना हो फर्स्ट स्टेप वहीं से स्टार्ट कर दो कि मुझे ये करना है, भले ही तुम्हें जॉब में से रिजाइन देना पड़े या फिर जॉब को डिसकंटिन्यू करना पड़े। Okay. So that was wonderful, Kirtan. So, देखो, if I'm to summarize your entire process, you are from Gujarat and people of Gujarat are very well aware. इनफैक्ट उनको बहुत पहले से चीजों का पता है कि अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज कैसे एक्सप्लोर करनी है, बट देन इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, उसमें बहुत सी ऐसी स्टेट्स भी हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर। डायरेक्ट पीएचडी का अपॉर्चुनिटी वैसे भी इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है। डायरेक्ट पीएचडी सिंपली मीन्स दैट यू आर गोइंग टू गेट द स्कॉलरशिप एंड you can self-sustain yourself. And as you mentioned, 4.5 years after BTech, you get PhD. So that is something where you save the time also, you save money also, and you do wonderful research, because from the very first day you are clear that मेरे को रिसर्च करना है, तो आपको शुरू से ही सिस्टमेटिक वो हो जाएगा, and that is something which is really good. And I also motivate students and I also tell them that अगर आपका रिसर्च बेंट ऑफ माइंड है, आपको आगे बेसिकली कंप्यूटर साइंस या जितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो रिसर्च के बेस पे ही चलनी है, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है देन यू शुड श्योरली गो फॉर दैट एंड यू शुड ट्राई टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज इन दीज यूनिवर्सिटीज। इंडिया की यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, बट अब्रॉड यूनिवर्सिटीज के कुछ एडवांटेजेस जो हैं, दैट एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर विच यू गेट, that we cannot deny. That is something which is really good. And yes, professors are very welcoming, professors are very responsive. आप मेल कर रहे हैं, वो उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको मेंटरिंग कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज हमें फॉरेन में देखने को मिलती है। नो डाउट इन इंडिया ऑल्सो प्रोफेसर्स डू दैट, बट यस, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन. So I thank you, Kirtan, for your time which you gave here, and I congratulate you again for your selection and wish you all the very best for your career ahead. Thank you, Kirtan.